morning, parents and students. I, Suman Indora, class teacher, nursery class, welcoming all who gathered here. As we all know that very well, why we people are gathered here. Let me tell you why we are here. Last time, before summer break, when we finished our theme 1, we had celebrated theme day. Similarly, we have finished our theme 2, I am happy to be me. In this theme, our young children are happy to find out facts about themselves and understand what makes them special. Children will talk about what they enjoy doing, their feelings and emotions. This will help to build their self-esteem. The concept of comparison plays a big role in this theme. Now let's start our today's activities. Tell us about your face. I have 2 eyes. And 2 eyes, 2 ears. 2 ears, 1 nose. 1 nose, 1 mouth. 1 mouth, 2 cheeks. 2 cheeks, 1 chin. 1 chin, And a hat full of hair. and a hat full of hair. Hat full of hair. Hat full of hair. Thank you everyone. Thank you everyone. Hat, 1 mouth. 1 mouth, 2 shoulders. 2 shoulders, 2 hands. 2 hands, Fingers. fingers, Stomach. stomach, Thighs. head, Knee. feet, Foot. foot, These all are my body parts. body parts. Thank you everyone. Thank you everyone. Good morning everyone. Chick, chick, boom, boom. उधर Chick, chick, boom, boom. Hi. Hati aja jum jum, mulana cek gum gum gum, Chick. cek boom boom boom. Hello Olivia, क्या घर के अंदर आओ. क्या कभी आते? जिया बोली ना ना ना. जिया बोली ना, मौसी तुम अंदर ना आना. बस तू आते ना ना ना. La. Hey. My name is Mala. I am person. I am person. Look at me. Look at me. You will see. You will see. Someone was person. Someone was person. It is me. It is me. Thank you. I am Silent Maya. Look at me. Remember myself. Now this way. Thank you. So, Happy face. happy face. Now go and stand with happy face. Very good. Now Anya, come. Scared face. Scared face. Go with scared face. Scared face. This way, Annie, go there. No, this is sad. Go there. Sad face. Go and find sad face. Go and find. Bhavika, sad face find karo. Where is sad face? Sad face. Very good. Go and stand. Now last one, Dhruv. Angry face. Where is angry face? Face. Where is? Face. Where is? Where is that? Where is angry face? Here is angry face. Now clap. Thank you everyone. 1. One. Very good. Go back. Go and say 2. Ashish, go and say 2. 2. Very good. Samaya, go and say. Which number you have? 3. Very good. Anya, go and say. 4. उधर देखो. 4. 4. Very good. Laksham, go. 5. Very good. Now come. Which number you have? 6. 6. 6. Very good. Go. Ishan, come. Tell me which number you have.
हाथ में अपने नंबर 7. 7. Very good. Go. Nabe come. 8 loudly. 8. Very good. Arman come. Come. 6. 9. You have 9. You have 9. 6. 9. Very good. Bhavik come. Bhuvi come. Bhuvi come. Very good. And green. Start. 5. You have to collect 5. Very good. Very good, Divyam. Done? 5, only 5. Sanvi, 5. Okay, now stop, everyone. Stop. So very good. This is our color sorting activity. Colors, सारे beads जब मिक्सअप होते हैं तो उनको different colors को एक बाउल में कलेक्ट करना है, single color. Okay? This is my head, these are my ears, these are my eyes, this is my nose. These are my cheeks, this is my chin, this is my mouth, these are my teeth. This is my tongue, this is my neck, these are my shoulders and these are my hands. This is my elbow, this is my wrist, these are my fingers, this is my chest. This is my stomach, this is my thigh, this is my knee, this is my leg. This is my ankle, this is my foot, these are my toes and these are my body parts. Kiso ready चलिए. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now you know your ABC. Come along and sing with me. Let's go. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. And appreciate my nursery class kids. Thank you everyone. ये पक्की बात है कि बिना पेरेंट्स के ये कुछ नहीं कर सकते। और मुझे पता है मैं हर एज के बच्चे के साथ वास्ता हूँ। जैसे 12th के बच्चे हो गए, 11th के हो गए, आपको सिर्फ ना इनके लिए 5th तक मेहनत करनी है। आपका रोल 5th तक का है। आप किसी भी स्कूल में डाल दो इसको, 5 तक माँ का बहुत ज़्यादा रोल है। तो माँ के रोल के पीछे एक फोर्स है, जो उसके पापा हैं, जो घर का माहौल है, वो सारा आपको एक सेट करना है। मुझे नहीं लगता कि जो थीम आपको दिया गया था आपने उसको घर में पढ़ा था। अगर आपने पढ़ा होता
आपने उसको रोज रेगुलर फॉलो किया होता तो आपको बहुत एंजॉय करना था यहाँ पे हम सबको। इस वक्त जो एंजॉय किया वो टीचर और स्टूडेंट ने किया है, तो फिर बच्चे अपने आप पढ़ेंगे। तो मेरी तो एक यही बात है, आप जो थीम 3rd स्टार्ट होगा उसको आप अच्छे से रन कर लीजिए। आपको कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी से कंपटीशन करना है कि उसका बच्चा ये कर रहा है मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा है। आपने बस इतना सा टारगेट रखना है कि वो थीम 3 है ना, वो 100% एग्जीक्यूट हो जाएगी। वो 100% तभी एग्जीक्यूट होगा जब आप लोग उसमें साथ दोगे, क्योंकि 70% आपका रोल है, 10% मेरा है, बाकी टीचर का है। अगर 70% काम नहीं करेगा, जैसे अभी एक पेरेंट कह रहे थे मैं शॉपकीपर हूँ, आपने अगर घर में टीवी लगाया हुआ है तो आधा घंटा इसके साथ ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म करो पेन ड्राइव में। शाम को आप रिफ्रेश हो जाओगे, घर का माहौल भी ठीक हो जाएगा। आधा घंटा सिर्फ देना है, 20 मिनट देने हैं। आप आज एक प्रण करके जाओ कि मुझे 20 मिनट अपने बच्चे के लिए देंगे, सिर्फ 20 मिनट। और जो स्कूल में करके आया है, क्या पता उस दिन मैम छुट्टी पे है, उसने नहीं करवाया है, हमने कोई गलती करी है, टीचर ने कोई गलती करी है, बीमार हो गया है, स्कूल नहीं गया है, वो आपने ही कवर करना है। तो मेरी तो आपको एडवाइस इन बच्चों के लिए यही है, बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, फैमिलीज में इतना स्ट्रेस है कहने की बात नहीं है। एक तो इस एज के जब लोग, एक लड़कियां दूसरे घर में आती हैं, वहाँ सेटल होने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरा हमारे देश में फाइनेंस की बड़ी प्रॉब्लम है। बट आपको ये सारे अगर लड़ाइयाँ लड़नी है तो बच्चों को अच्छा बनाना पड़ेगा। तो बच्चा बनाने का एक ही तरीका है कि माँ और बाप की एक, आप जो मर्जी करो इनके सामने, आपने एक बड़ा कूल सा एटमॉस्फेयर देना अपने उस रूम में जहाँ बच्चा 20 मिनट आप दोगे तो ये इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, कैसे कंट्रोल करना है। तो ये 5th तक करोगे, फिर आप इनको खुला छोड़ दो, फिर ये कभी भी गलती नहीं होगी। ये कभी भी, आप टीचर को देख रहे थे ना, जो बोल रही थी फटक से एक्ट कर रहे थे, तो पेरेंट्स कह रहे हैं हमारी बात नहीं मानते। आपने पैदा किया, आपकी बात कैसे नहीं मानेगा? सिर्फ आपका बताने का तरीका, मम्मा को अगर सास की टेंशन है उस पर निकलेगी, पति की टेंशन है उस पर निकलेगी, पापा को दुकान की या ऑफिस की टेंशन है तो बस मैंने तेरे को पैसे दे दिए, अब तेरा काम है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो ये छोटी छोटी सारी चीज़ें आपको रोकनी पड़ेंगी, तब जाके ये बच्चे अच्छे बनेंगे। अदरवाइज किसी भी स्कूल में भेज दो, कहीं भी भेज दो, आपकी परेशानी इन पे अभी इफेक्ट करेगी तो ये जिंदगी में सक्सेस नहीं होगी। तो आप जितने मर्जी डिस्टर्ब हो, घर में जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स हो, इनके सामने आपने कांस्टेंट रहना है, हमेशा एक जैसे रहना है। तो डेफिनेटली ये आपको आउटपुट्स देंगे, आपकी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन ये आपको 5th के बाद दे देंगे। ये जो बीज है ना, अभी आप जमीन के अंदर है, तो जब वो पेड़ बनेगा ना, फिर हर चीज़ आपको देगा, हर फ्रूट देगा, हर चीज़ देगा। आप बीज से मत उम्मीद करो मैं इसको ज़्यादा पानी दे दूँ, आपको गुस्सा चढ़ा इसको थप्पड़ लगा दोगे, आपको बहुत प्यार आया तो उसको चुपियाँ पपियाँ पे करना शुरू कर दोगे। वो इसके लिए जहर है, वो अंदर ज़मीन के अंदर है, इसको एक प्रॉपर आपने फीड देनी है, इसका टेम्परेचर भी मेंटेन रखना, हर चीज़ मेंटेन रखनी। जब ये पेड़ बन जाएगा ना, फिर इस पर आंधी तूफान जो मर्जी आए इस पर कुछ असर नहीं होने वाला है। तो आप कोशिश करो कि इन बच्चों के साथ एक कोमल सा बीज है, इसकी बड़ी केयर करनी है, माली की तरह इसकी हमने परवरिश करनी है ताकि ये बिग पेड़ बन सके। अगर इसकी ग्रोथ में इसको प्रॉपर खाद नहीं मिलेगी, प्रॉपर फर्टिलाइजेशन नहीं मिलेगी, तो ये बड़ा होके जैसा इसको माहौल दिया होगा ये वैसा बन जाएगा। तो 5th तक तो मेरी यही एडवाइस है आप पेरेंट्स को, इनको 25 मिनट आपने जरूर देनी है। अगर घर में दादा दादी भी है ना, तो 25 मिनट आपने स्कूल लगाना घर में, इनकी कोई एक एक्टिविटी पकड़नी है, उसको एंजॉय करना 20 मिनट। अगर दादाजी है उसको बिठा लो, दादी है उसको बिठा लो, चाची है उसको बिठा लो, ताई है उसको भी बिठा लो, भाई हमने 20 मिनट ये काम करना है, हमें मंदिर नहीं जाना है, हमें ये काम करना है। तो देखो आपके घर का कितना अच्छा माहौल बन जाएगा। मुझे लगता है कि ये थीम जो 3 है, आप जरूर इसको पढ़ना और घर में इम्प्लीमेंट करना। टीवी लगाया तो एक्टिविटीज़ ले लेना, लिखने वाला काम है, आपको पूरा पता होना चाहिए। फिर आपको टीचर
टीचर तो आपसे करना चाहिए। यहाँ तो टीचर ऐसे घूमता है जैसे यार हम तो राजे हैं। आप कुछ पूछते नहीं तो उनको इस बात का डर है। आप कब पूछोगे? जब आपको पूरी नॉलेज होगी। मेरे को याद है हमारे यहाँ पे आईएएस ऑफिसर बने थे। वो टीचर एक केमिस्ट्री का उसकी कहानी सुना रहा था। करता ये इसने तो आईएएस ऑफिसर बनना ही बनना था। कहता मुझे 40 साल की हिस्ट्री में मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, तो इसने मुझे क्वेश्चन पूछने शुरू किए तो मुझे और बुक्स खोलनी पड़ी घर में जाके, मुझे और पढ़ना पड़ा उसको पढ़ाने के लिए। तो आप अगर ऐसे डमी आओगे, डमी चले जाएगी, तो टीचर क्या है? टीचर ने तो कहना यार पेरेंट्स मुझे पूछते नहीं कुछ, आई एम द बेस्ट। मेरी ये एडवाइस है, इस उम्र में आप कम से कम 5 साल कुछ ऐसी चीज़ें पूछो जो टीचर ने ना की हुई होगी। तो टीचर को भी लगे यार पेरेंट्स तो पूछते हैं, मेरे को ये कैसे रहेगी। प्रिंसिपल कितनी पूछ लेगी, कोऑर्डिनेटर कितना पूछ लेगी। तो नुकसान और फायदा सबसे ज़्यादा आपको होने वाला है। आपकी एज जैसे निकलेगी, जैसे बड़े होंगे, फ्रूट आपको ही मिलना है पहले। तो हम अपना शरीर, दिमाग, पैसा, इज्जत सब कुछ इनके हवाले करके बैठे हैं, और 20 साल के बाद वो भी ना मिली तो क्या फायदा है। तो इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि तीन पे ही फोकस करना, और ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ये क्या बनेंगे, कैसे होंगे। पक्की आपकी बात मानेंगे। मैम इनको थीम कराती है इसलिए ये उसकी बात मानते हैं। अब अगर आपने चाहते हो कि आपकी बात माने, इसकी एक टीचर, माँ तो टीचर होती है, बस बेस्ट टीचर बन जाओ। माँ तो बेस्ट होती है, पर टीचर साथ में हो जाओगे अच्छे तो ये सक्सेसफुल रहेगी। मुझे लगता है ऐसे थीम हमें ग्रोथ देंगे बच्चों को, और सोसाइटी में लड़ने की हिम्मत देंगे। मेरी मार्कशीट, मैम अभी बोल रही थी मैंने MA BEd करा हुआ है, क्या आपके पास फर्स्ट सेकंड नर्सरी की भी मार्कशीट है? अगर आप जॉब में नहीं हो या घर में हो तो 10th की मार्कशीट की कोई वैल्यू है? अगर हाउस वाइफ हो तो ग्रेजुएशन की कोई मार्कशीट की वैल्यू है? अगर फौज में भी भर्ती हो गया है, अभी सैलरी मिल रही है, तो आज के दिन 10th की मार्कशीट की वैल्यू नहीं है, वैल्यू है काम की। अगर आप फौज में अच्छा काम कर रहे हो, आपको ब्रिगेडियर अपने पास बुलाएगा। अगर किचन में अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी किचन चला रहे हो, तो पूरा मोहल्ला आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो हमारा वर्क बोलता है, हमारे कागज नहीं बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, मार्क्स के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। मार्क्स से कुछ नहीं मिलने वाला, जो मिलेगा एज पर एज, एज पर टाइम, आप जैसा रिएक्ट करोगे वैसा आपको लोग प्यार करेंगे। तो यही बच्चों से है, जैसे इसको मदर तो है, भाई हो, आप दिन भर उसको जफियाँ डबियाँ डाल लो, पढ़ाओगे नहीं तो उसकी किस काम की। तो मेरी तो एडवाइस है कि प्लीज़ इनके लिए 20 मिनट जरूर रखो अपनी लाइफ में से, तो ये सक्सेसफुल जाएंगे। आपका बहुत बहुत थैंक यू, खासकर इस टीचर का जिन्होंने 1 महीने में इतना बच्चों को तैयार किया। थैंक यू। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने टाइम निकाला और यहाँ आए। तो मैं अपने करिकुलम के बारे में बताना चाहूँगी कि हम फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल एक डिफरेंट करिकुलम लेके चल रहे थे, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि हम और आप लोग जिस दौर में हम लोगों ने एजुकेशन ली है, नर्सरी क्लासेस में फोकस A to Z और क ख ग पे ही रहता था। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स की ये डिमांड होती थी कि हमारे बच्चे ने कम पेज लिखे हैं, अभी तक A to Z नहीं किया है, क ख ग नहीं किया है, उसको लिखना नहीं आता, उसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। लेकिन ये जो क्लास होती है, ये फाउंडेशन क्लास है, ये बेस है। इसमें सिर्फ बच्चे को आज के दौर में A to Z लिखना नहीं सिखाया जाता, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। राइटिंग पार्ट तो प्री प्राइमरी करिकुलम में दूर जाके आता है, UKG क्लास में जाके उसकी प्रॉपर राइटिंग जो है वो थोड़ी बहुत शुरू होती है, और क्लास 1 में बच्चा सही तरीके से लिखना शुरू करता है। तो हम स्टार्टिंग से ही एक डिफरेंट अप्रोच लेके चले थे, लेकिन हमारे पेरेंट्स, क्योंकि नेचुरली ये बात ऑब्वियस भी है कि पेरेंट्स नहीं पकड़ पा रहे थे कि हम स्कूल में एक्चुअली बच्चों को करवा क्या रहे हैं, तो इसलिए इस सेशन में हमने थीम डेज शुरू किए। जैसे कि आपको पहले ही जो है 7-8 बुक्स जो हैं वो दे दी जाती है। तो सबसे पहले जब पेरेंट्स 7-8 किताबें पकड़ता है तो उसको लगता है कि ये छोटा सा नर्सरी का 3 साल का बच्चा तो ये 7-8 किताबें कैसे पढ़ेगा। तो वो 7-8 किताबें जो हैं वो बच्चों को एकदम नहीं पढ़नी है। उसमें एक तो आपकी सॉन्ग्स एंड राइम्स की बुक है,
और एक जो है वो पिक्चर डिक्शनरी है, और जो बाकी कुछ 5-6 किताबें हैं वो थीम वाइज किताबें हैं। वो 6 किताबों में से एक टाइम में बच्चे को एक ही किताब पढ़नी है, वो हर थीम वाइज किताबें हैं। अब वो चीज़ें भी पेरेंट्स नहीं पकड़ पा रहे थे, तो उसके लिए हमने ये थीम डेज शुरू किए, सो दैट हम एट द एंड ऑफ एवरी थीम आप लोगों के साथ एक क्लासरूम लगा सकें और आप लोगों को बता सकें कि एक्चुअल में हम करवा क्या रहे हैं। तो ये इस सेशन का जो है वो दूसरा थीम डे था, और खासकर ये बच्चे जो हैं, ये नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, आई होप कि आप समझ सकेंगे कि एक एक बच्चे को बिठा पाना और उसको टाइम टेबल फॉलो करवा पाना, उसको इंस्ट्रक्शंस दे पाना कितना मुश्किल है। और समर वेकेशन के बाद हमारा नए तरीके से सारा सेटअप जो है वो शुरू हो जाता है। जैसे ही अप्रैल में क्लासेस लगती हैं, टीचर्स बड़ी मुश्किल से बच्चों को सेटल डाउन करते हैं, और मई एट द एंड ऑफ मई जो है वो समर ब्रेक हो जाती है और फिर से 2 मंथ्स का गैप आ जाता है। तो आफ्टर समर ब्रेक हमें रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो जुलाई में जैसे ही हमने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे पढ़ाई या रेगुलर सिलेबस चलाना तो बहुत दूर की बात होती है। कुछ दिन तो बच्चों को क्लास में रीसेटल करने में, उनको वॉशरूम इंस्ट्रक्शंस, उनको लंच इंस्ट्रक्शंस, उनको सिटिंग इंस्ट्रक्शंस देने में ही लग जाता है। तो आज जो जैसा इन बच्चों ने परफॉर्म किया है, हालांकि अभी ये उन चीज़ों से बहुत दूर हैं, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि एक बच्चा जब हम इतने सारे लोगों के फ्रंट में आता है, माइक पकड़ता है और टीचर का एक वर्ड की इंस्ट्रक्शन सिंगल वर्ड में, सिंगल लाइन में वो बच्चा जो है वो टीचर को रिवर्ट कर रहा है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी भी और टीचर की भी। तो मैं ये चाहूँगी कि ये प्रैक्टिस हमारी जो है वो साल भर जो है वो चलती रहे, ताकि एट द एंड हमें जो है वो अच्छी आउटपुट मिले। जैसे कि सर भी अभी और मैडम भी कहते हैं, जब हम पेरेंट्स से पूछते हैं तो हमारे पेरेंट्स कोई रिवर्ट नहीं करते, कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं करते कि बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम हर बारी पेरेंट्स से पूछते थे कि आप बताइए कैसा है, ठीक है। तो होता क्या है, जब 5th 6th में बच्चा पहुंचता है तब पेरेंट्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं कि हमारा बच्चा बोल नहीं सकता, हमारा बच्चा अपने आप को प्रेजेंट नहीं करता, रीडिंग नहीं करता, राइटिंग नहीं करता। तो ये एक ओपन जो है ये हमारे सामने है, सभी के सामने है बच्चों की परफॉर्मेंस। अब हम इसको, जैसे हमारे बच्चों ने फर्स्ट थीम में अपने आप को प्रेजेंट किया था, आप में से कुछ लोगों को अगर याद होगा तो बच्चे रो रहे थे, माइक नहीं पकड़ रहे थे, बोल नहीं रहे थे। कुछ बच्चों के तो वर्ड्स भी समझ में नहीं आ रहे थे कि वो एक्चुअली बोल क्या रहे हैं। आज उन्होंने टीचर की 1 लाइन में टीचर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे बच्चे अच्छे से अपने आप को, अगर हमने यही प्रैक्टिस फॉलो करी तो अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसमें हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। इसमें आप लोग भी अपना एनालिसिस करिए कि हमारा बच्चा कहाँ पे वीक है या क्या है। आप लोगों के जैसे कोई कलर है कि इस थीम में आपका येलो और ब्लू कलर है, ये वाली राइम है, ये वाले मैथ्स के कंपैरिजन है, यहाँ तक नंबर रिकॉग्निशन है, या यहाँ तक वर्ड्स का फोनेटिक्स है, तो आप भी उन हाइलाइट्स पे कवर करके, या मुझे लगता है कि ग्रुप में भी टीचर रोज सेंड करते हैं कि आज क्लास में जो है वो कौन सी एक्टिविटी हुई है। नोटबुक वर्क तो आपको 1 या 2 पेजेस का जाता ही जाता है, उसके अलावा ग्रुप में भी सेंड किया जाता है कि आज कौन सी एक्टिविटी जो है बैठे लर्न करें। इनके लिए ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आपको टॉपिक्स जो हैं वो शेयर किए जाते हैं टीचर के थ्रू रोज व्हाट्सएप ग्रुप में, या जो भी आपको सिलेबस में दिए जाते हैं, बस आप उन्हीं चीज़ों पे फोकस करके इनको गेम्स के फॉर्म में किसी तरीके से भी वो चीज़ें समझाएं, तो बच्चे की डेफिनेटली उन चीज़ों पे कमांड जो है वो बन जाएगी। तो फिर भी अगर किसी को भी कोई डाउट लगता है, क्योंकि थीम एट द एंड ऑफ थीम 3 में चाहूँगी कि हमारे बच्चे इससे भी काफ़ी इम्प्रूव हों। हर बच्चे का अपना पोटेंशियल है, अपनी कैपेसिटीज़ हैं। आप प्लीज़ कंपैरिजन्स मत कीजिए कि बच्चे को जाके ये मत कहिए कि वो देखा वो बच्चा कितना अच्छा बोल रहा था, आप नहीं बोले, ऐसा कंपैरिजन मत कीजिए। ये बच्चे जो हैं ये दी बेस्ट बच्चे हैं। अगर कोई कमी होगी तो वो हम में होगी, वो आप में होगी, जो हम लोग इनकी डायरेक्शन जो है वो मिसमैनेज कर जाएंगे।
तो आप सारे कोशिश करें। वहीं अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमारी तरफ से आप जो भी सपोर्ट चाहेंगे, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, क्योंकि हर बच्चे का अलग कैलिबर है, अलग स्टाइल है, अलग प्रॉब्लम्स हैं। हम उनके अकॉर्डिंगली ही जिस बच्चे को जितनी डोज चाहिए हम वैसी ही देने को तैयार हैं, लेकिन उसमें हमें आपका भी 100% सपोर्ट चाहिए, बिकॉज ये बच्चे बहुत छोटे हैं, ये खुद कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपकी और हमारी डायरेक्शन जो है वो फॉलो करते हैं। तो ये थीम डेज का मकसद यही है कि पेरेंट्स भी आएँ, पेरेंट्स भी हमारे साथ आके बच्चों की क्लास में बैठें और देखें कि हम कैसे काम करवा रहे हैं, या पेरेंट्स उसमें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, या आप कोई और सजेशन भी हमें दे सकते हैं कि आप इस तरीके से करवाइए, या ये चीज़ें घर पे करवाने में आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम उन पॉइंट्स पे भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको कंसल्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग जिस तरह से हमें सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे, और आने वाले टाइम में हमारे बच्चे अपने आप को और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात जो मैं फिर कहूँगी कि एक बच्चे ने माइक पकड़ के टीचर की एक लाइन में, टीचर एक बार ही बोलती थी तो बच्चा तुरंत उसकी इंस्ट्रक्शन को रिवर्ट करता था। दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।